such as invention, literacy, artistic work. फिर है design and symbols, names and images used in commerce. Various types of IPs are copyright, patents, trademarks, industrial designs, geographical indicators, trade secrets. Under Kapila campaign, students in higher education, educational institutions, HEIs, will get information about correct system of application processing for patenting their invention. तो इसमें जो स्टूडेंट है उनको फोकस किया जा रहा है कि भाई उनको एनलाइटमेंट दिया जा रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सिस्टम फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ पैटेंटिंग देयर इन्वेंशन। ये है फिर है ये विजिबल है क्या स्क्रीन? हाँ दिख रही है। ये रहा फिर कपिला आता है को। साथ हाँ कपिला हुआ ना स्टूडेंट को इनमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है इनको थोड़ा मतलब इनको जो करेक्ट प्रोसीजर है एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पेटेंटिंग उसमें ज्ञान दिया जाएगा। फिर आता है सार्थक इनिशिएटिव। ये है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ रोड मैप फॉर एंड वे फॉरवर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP. It is an indicative and suggestive implementation plan for school education and was released in April 2021 as a part of celebrating Amrit Mahotsav on 25 years independence. State or UT are given flexibility to adapt this plan to with local contextualization and also modify as per the need and requirement. It is planned to be implemented in a phased manner. तो ये है हमारा NEP का एक प्रावधान की तरह है। तो रोड मैप है बेसिकली। तो इसमें क्या है, स्टेट और यूटीज को पावर दिया गया कि आप अपने लोकेशन के अनुसार आप रिफॉर्म्स करके इम्प्लीमेंट करो। तो इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज वाइज मैनर। बस फिर है रिस्ट्रक्चर्ड मॉडिफाइड स्कीम्स। तो ये है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री with attractive fellowship. The scheme seeks to attract best talent into research, thereby realizing the vision of development through innovation. इसमें क्या है, अब साइलेंट फीचर्स की बात होता है कि schemes was launched for a period of 7 years beginning 2018-19, which can offer these schemes include IITs, all ISERs, all Indian Institute of Science, Indian Institute of Science Bangalore, and some of the top central universities NIT that offer science or technological degree. Student will be selected through a rigorous selection process and the performance will be reviewed suitably through a national convention. Recent changes क्या किए गए हैं, student from any recognized institute except IIT, NIT, ISER, Indian Institute of Science, IIES, triple ITs can also apply. Required GATE score is reduced to 650 from 750 apart from minimum CGPA of 8 or equivalent. In addition, direct entry, lateral entry is also now allowed, under which students who are pursuing PhD in PMRF granting institution can apply. इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो देश का जो रिसर्च है क्वालिटी उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने मतलब थोड़े रिक्वायरमेंट में जो प्री रिक्विसाइट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसका थोड़ा मतलब थोड़ा कमाए है। जैसे CGPA 8 इक्विवेलेंट और स्केट्स को जो पहले 750 था अब 650 किया गया है। और लेटरल एंट्री मतलब इस स्कीम के अंतर्गत जो PhD अभी कर रहे हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। ये पहले था IITs, ISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, अब हर कोई मतलब स्टूडेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। क्या है, अब ये वाला खत्म हो गया ना, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। मतलब CGPA भी अब इंक्लूड, सॉरी गेट का स्कोर है ना वो उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। देन आता है द फेमस मिड डे मील स्कीम।
So why in news to help safeguard the nutrition level of children and aid in protecting their immunity in the center. So क्या है इनमें 2021 अप्रूव मॉनिटरी असिस्टेंस टू 11.8 crore students studying in class 1 to 8 in the government and government aided school in the country through DBTs. The assistant amount to cooking cost components in the of the midday meal scheme. Objective क्या है to enhance enrollment, retention and attendance and simultaneously improve nutritional levels among school going children. अभी जो NF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था, तो इसके अंतर्गत 3 प्रॉब्लम शायद देखे गए हैं. वो है स्टंटिंग, एक है वेस्टिंग और एक मैल न्यूट्रिशन. तो क्या है अब तो शायद इसको भी इन्होंने क्या बोलते हो आप ऑब्जेक्टिव लिया है. तो इसके बेनिफिशियरीज कौन है? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 8 इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड मद्रासास एंड मकतब्स प्रोवाइडेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान. तो सेंटर रन करती है अंडर EGS एजुकेशन गारंटी. भेजे थोड़ा नीचे कीजिए. हाँ, alternate and innovative education AIE and National Child Labor Project NCLP school of all areas across countries are also included under this midday meal scheme. अब आते हैं इसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे. पहला है एम्पावरिंग कमिटी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. फिर है नेशनल स्टीयरिंग monitoring committee and NSMC headed by Secretary Department of School Education as well as approval board. दूसरे में आता है State Steering Committee headed by Chief Secretary. डिस्ट्रिक्ट पे है डिस्ट्रिक्ट का लेवल कमिटी जिसका चेयरमैन करेंगे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और लोकल लेवल में पंचायत सभा, ग्राम सभा, मेंबर ऑफ विलेज एजुकेशन कमिटी, VECs, पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज. आता है इट envisages providing cooked midday meal with 450 calorie and 12 gram of protein to every child at primary level and 700 calories and 20 gram of protein at upper primary level. So it also involves providing nutritional support to children of elementary stage in drought affected areas during summer vacation. ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कॉस्ट इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. The center provides free food grains to the state. The cost of cooking, infrastructure development, transportation of grains and payment of honorarium to cooks and helper is shared by center with the state government. The central government provides a greater share of fund. Contribution of state government differs from state to state. इसमें क्या किया गया है इस स्कीम्स के और एक रिवाइज नाउ. तो annual increase in cooking cost linked to inflation index is to offset the impact of inflation on food items under midday meal scheme. Revision of transportation rate from 75 rupees per quintal to other than northeastern and Himalayan state to PDS rate subjected to maximum 150 per quintal. Revision of management monitoring and evaluation MME rate from 2% to 3% of the total admissible recurring central assistant. This would enable the states and duties for better supervision and monitoring of the scheme. Distance of kitchen devices for kitchen devices has been enhanced from 5,000 per school to 10,000 to 25,000 based on enrollment to enable the school for procuring and replacing adequate kitchen devices. 2 new components has been approved. रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर क्या है असिस्टेंस ऑफ 10,000 फॉर द किचन कम स्टोर कंस्ट्रक्टेड 10 years ago on share basis between center and state, and fortification of food items in a systematic manner through FCI starting with rice kitchen gardens in each school will be encouraged. The delegation of power for implementing
implementing with minor modification. क्या है from the existing guidelines to district level committee chaired by district magistrate. Also the state and the UTs have been given flexibility to utilize with the prior approval of MHRD 5% of the annual work plan and budget for new intervention. The norms क्या है? Use of pulses from buffer stock. State may procure pulses as per the local taste for the midday meal from center buffer stock created by the Government of India. Monitoring the assistance, the state and UTs are required to ensure that the daily data from 100% school is uploaded through automated monitoring system AMS menu under MDM. State and UTs are required to adopt ways to develop a menu that reflect local taste and produce a local produce that is differ on different days. क्या है? तिथि भोजन to encourage people from the community to celebrate important days such as childbirth, marriage, birthdays by contributing to the MDM scheme. Tithi Bhojan is not a substitute to the MDM, but it supplements or complements MDM. Usage of jails, temples, gurudwaras for MDS. All state and UT are advised to involve community and other agencies such as jails, temples, gurudwaras in ML scheme. ठीक है, अब एक बार पूरे को पूरा समराइज कर दे। हाँ भाई, तो पहला क्या है? अब मिड डे मील का क्या है? चार ही है। पहला है आपका एनरोलमेंट, रिटेंशन, देन आता है अटेंडेंस, देन फाइनली आता है न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज करना। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला स्कूल 1 to 8 लेवल के जो है गवर्नमेंट, लोकल बॉडी जो भी और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, मद्रासास, मकताब, तो इनको इंक्लूड किया गया है। फिर ये जो EGSA एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंतर्गत और AEI और NCLP जितने भी भारत में देश है सबको इंक्लूड किया गया। बात है स्ट्रक्चरिंग के बारे में। जो एपेक्स कमिटी है, एम्पावर्ड कमिटी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा संचालित होगा। फिर NSMC सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और प्रोग्राम अप्रूव बोर्ड। स्टेट में मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी है वो हेड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा डिस्ट्रिक्ट। लोकल में आपका ग्राम पंचायत आता है, विलेज एजुकेशन कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। फिर क्या है? इसमें आता है कि जो 1 to 8 के जो मतलब जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको 450 कैलोरीज, 12 ग्राम प्रोटीन, जो उनसे पर प्राइमरी है उनको 700 और 22 ग्राम की प्रोटीन। तो अब जो ये ड्रॉट प्रोन एरिया है इनको भी यहीं पे सपोर्ट मिलता रहेगा इवन इफ ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो जाहिर है कि बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंबाइनली शेयर होगा। आते हैं कॉस्ट ऑफ कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंटर देगा आपको फूड ग्रेन्स फ्रॉम FCI टू द स्टेट्स एंड कॉस्ट ऑफ कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन ये स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे। और स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स टू स्टेट डिफरेंट रहेगा। तो अब आते हैं रिसेंट क्या रिवाइज नॉर्म है। पहली बात यह है कि जो इन्फ्लेशन में ये जो आई थिंक सेंटर का जो शेयर है ना जो उसको प्रोवाइड कर रहा है फूड ग्रेन्स, आई थिंक वो जो NFSA एक्ट है ना उसके थ्रू ही राउट कर रहा है स्कीम के अंडर। ठीक है, तो अब आते हैं रिवाइज नॉर्म क्या है। ये महंगाई को देखते नज़र रखते हुए इनका जो एनुअल इंक्रीज होगा जैसे कि टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है ये भी बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और क्या है? तीसरा है रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो फिर चौथा है असिस्टेंस फॉर किचन डिवाइसेस, इसको भी थोड़ा बढ़ाया गया है 5,000 से 10,000। पहले 5,000 मिलता था पर स्कूल, पर अब वो 10 से 25,000 बेस्ड ऑन एनरोलमेंट। 2 नए कंपोनेंट लाए गए हैं। जो पहला है
रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर्स जो है, जो कि 10 साल पहले बनाए गए थे। अब दूसरी बात है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स थ्रू एफसीआई इन ए सिस्टमेटिक मैनेज। और यहाँ पे राइस किचन गार्डन्स का भी एनकरेज किया जाएगा। है डेलीगेशन ऑफ पावर इन इम्प्लीमेंटिंग विद माइनर मॉडिफिकेशन, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर रहेगा। और स्टेट और यूटीज को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिला है तो यूटिलाइज जो फंड है 5% ऑफ द एनुअल वर्क प्लान। अब और भी कुछ है, यूज ऑफ पल्सेस फ्रॉम बफर स्टॉक और मॉनिटरिंग द असिस्टेंस। और जो मेनू है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल जो टेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और लोकल प्रोड्यूस। तो और एक है तिथि। तिथि भोजन। हाँ तिथि भोजन, नहीं तिथि बहुत नाम स्पेशल है तो इसीलिए तो तिथि भोजन जो है, तो ये टू एनकरेज पीपल फ्रॉम कम्युनिटी टू सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट डे सच एज, यहाँ पे मतलब तिथि भोजन जो है इट वोंट बी एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट बट एज ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब शायद यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मेन्यूज भी ऐड किए जाएंगे ऑन स्पेशल ओकेजन, यूसेज ऑफ जेल्स टेम्पल गुरुद्वारास, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हेलो। हाँ बोलो। हाँ वो ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो वहाँ पर वो डीबीटी की बात कर रहे थे, तो क्या मतलब वो कोरोना में जो स्कूल नहीं खुले हैं तो वो जो मिड डे मील ना नहीं जा रही थी उसके लिए अब डीबीटी उसका वो है क्या प्रोविजन? हाँ उसी के लिए। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो जो भी मिड डे मील नहीं मिल रही थी तो उसका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाए, वैसा है क्या? करेक्ट करेक्ट वही ऊपर है। कॉन्टेक्स्ट चेक करो। हम्म, अच्छा ठीक। ठीक है। हाँ तो मतलब ये देख लो काफी सारे मॉडिफिकेशन कर रही हैं तो लोकल नीड्स को सूट करने के लिए। वो पहले जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच चल रहा था उससे थोड़ा सा आगे निकल गया फिर, ठीक है। तो ये लोकल डिवर्सिटी को वो कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट डाले हैं। जैसे किचन डिवाइसेस है इसके लिए भी वो उसके अंदर प्रोविजन डाला है। और इन्फ्लेशन लिंक कर दिया है फूड आइटम्स को, तो क्योंकि बहुत सारी सब्जियां है ना वो उनका रेट वेरी करता रहेगा। सेंटर तो अपनी तरफ से जो फूड स्टॉक है उसके अंदर वो जो फूड ग्रेन्स है उसको ही प्रोवाइड करा सकता है। बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं वो मार्केट से प्रोक्योर करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया किचन गार्डन का। ये सब स्कूल जो अपने किचन मतलब स्कूल जो है उसके अंदर बैकयार्ड में कुछ ना कुछ अपना थोड़ा किचन गार्डन बनाए, ताकि जो बेसिक सब्जियां है ना वो वहीं पे उगा सके, उन्हें लाना ना पड़े। तो इससे उनके ऊपर जो कॉस्ट बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ अच्छे स्टेप्स थे इसके अंदर। और तिथि भोजन एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है कि अगर किसी को खाना प्रोवाइड कराना हो चाइल्ड बर्थ या फिर बर्थडे वगैरह का, तो वो भी प्रोविजन डाला है। तो आई थिंक काफी अच्छे प्रोविजन डाल दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। लाइक है बोलो। उन्नत भारत, तो कोई कुछ उन्नत बोला भारत था। अभियान। जैसे मिजोरम में है माई स्कूल माई फार्म, उसी की गाइडलाइंस पे। हाँ मतलब वो आई थिंक मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में कहीं शुरू किया था, बट नाउ दिस हैज बीन रेप्लिकेटेड ऑल ओवर इंडिया, तो वो चीज इंक्लूड करी उन्होंने। ओके। आता है उन्नत भारत अभियान UBA, जुलाई 2020 at tripartite a Ministry of Understanding memorandum of understanding has been signed between CSIR, IIT Delhi, Vigyan Bharati. This will pave the way for access to CSIR at rural technologies for UBAs. It is expected to lay the foundation for cooperation and joint action in the area of UBA for rural development in India. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्क विद द पीपल ऑफ, थोड़ा नीचे कीजिए, रूरल इंडिया इन आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इवॉल्विंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसमें अब फीचर्स क्या है? प्रोवाइड रूरल इंडिया विद प्रोफेशनल resource support from Institute of Higher Education, especially those who have acquired academic excellence in the field of STEM. आता है building institutional capacity in Institute of Higher Education
research and training relevant to the national needs, especially of rural India. IIT has been designed to be the coordinating institute for for UBS Unnat Bharat Abhiyan 2.0. Under this institution has been selected on a challenge mode, and this schemes has to be extended to 750 reputed higher education institute, both public and private of the country. Students from these institutions will adopt villages and visit them to acquainted with the lifestyle of people and their problem and the problem faced by them. तो जी थोड़ा ऊपर खींचिए। ये जो स्कीम्स है बेसिकली ये हमने देखा है कि जो हायर मतलब जो एक्सीलेंस अचीव किए हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल आईआईटीज जो भी है, तो उनको रूरल पीपल के साथ काम करना चाहिए, काम करने का प्रावधान है। और जो अभी मतलब जो समस्याएं इनके द्वारा फेस किए जाते हैं तो उनको सॉल्व करने की बात हो रही है। और एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, तो इसमें क्या है, इनको प्रोवाइडिंग रूरल इंडिया विद प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट क्या है। अब दूसरा है इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डअप करना, और आईआईटी दिल्ली जो है ये कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। और ये जो स्कीम्स है ये 750 रेपुटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बढ़ा दिया गया है। और इसमें यही काम है कि बच्चों जो बच्चे हैं इनको एक विलेज को अडॉप्ट करना है, वहीं पे रेगुलरली विजिट करना है टू अक्वाइंट विद द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड देयर बाय प्रॉब्लम्स, सो उनको सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। बस ये अच्छा है, आप कोड कर सकते हो इसको। मीन्स में कोड कर सकते हैं वो जो फार्मिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द वे हो सकता है। और दूसरा ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो रिसर्च है ना वो आईआईटीज में बेटर होती है और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। बाकी जो 750 में गए हैं तो रिसर्च का लेवल उतना बेटर नहीं रहता कि वो या फिर काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी हो जाती है। लेकिन यूबीए 1 थोड़ा सक्सेसफुल था, मतलब इसीलिए 2.0 आया था। तो मतलब मल्टीपल डोमेन्स में हो रहा है, सिर्फ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो रहा है। आई थिंक काफी होलिस्टिक कवरेज कर रहा है। राइट, वहां पर जो लाइवलीहुड और जो डबलिंग इनकम के लिए है ना, तो ये हो सकता है कि उन लोग की लाइवलीहुड इंप्रूव करने में। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं ना। मिसलेनियस इंस्टीट्यूट AICTE SPICES scheme for promoting interest, creativity and ethics among students. So ये schemes जो है फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है to institution for developing student club for well-rounded development of student by promoting their interest, creativity and ethics. This club should be served as model for other clubs in the institution and also those in other institution. Objective क्या है? To energize and position student club, chapters, societies as facilitating entity for pursuit of individual interest, creative work, showcasing talent, network and teamwork opportunities, social experience, organization and management skill, explore of professional ethics. So ये जो schemes है ये basically AICTE तो के द्वारा जाहिर किया गया है। तो इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट जो कॉलेज स्टूडेंट है तो बेसिकली उसका क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट और एथिक्स इन तीनों को ज़्यादातर ध्यान दिया गया है और इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। दूसरे में आता है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल IIC 3.0। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2018। मेन फोकस इज टू क्रिएट वाइब्रेंट लोकल इनोवेशन सिस्टम ecosystem, startup supporting mechanism in higher education institution, where institute for Atal ranking of institution or on innovation achievement framework etc. So far IICS has been established in about 1700 higher educational institution. It will be established in 5,000 higher education institution under IIC 3.0. तो अगर 3.0 आया तो जाहिर की बात है ये सक्सेस ही होगा। तो क्या है सीन, अब इसमें फोकस क्या किया गया है, लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम, स्टार्टअप को सपोर्ट करना
और ये अटल रैंकिंग शायद किसके किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग क्या ना, वो तो अटल इनोवेशन है ना, वो अलग है शायद, चेक कर लेना कोई। नेक्स्ट पे अटल, चलते हैं। हाँ चेक कर ही लेते हैं ना इसको। अटल इनोवेशन आया था ना शायद प्री में, ये कोई और कुछ ऐसे ही करके आया था इनोवेशन। हाँ, प्री में आया था वो, किसके अंतर्गत? हाँ वो वो नीति आयोग। नीति आयोग। वो तो नीति आयोग के अंडर है। हाँ नहीं, ये थोड़ा नेम डिफरेंट है ना, तो इसीलिए बता रहा था। एक बार देख लेते हैं इसको, कमेंट देना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Recently, the Atal ranking of institution on innovation achievement (ARIA) इसका short form बनता है, 2020 was announced. Around 674 institutions participated in ARIA ranking in 2020, compared with 469 in 2019. So, it is initiative of Ministry of Education, Government of India to systematically rank all higher education institution and university in India on indicators related to innovation and entrepreneurship development among students. More than quantity, ARIA focus on quality of innovation and tries to measure real impact created by these innovations. ठीक है, तब तक हम देख रहे थे कि जैसे बाकी सब रैंकिंग्स में हम कैसे इनोवेशन देखते थे, बाय नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल बाय या नंबर ऑफ स्टार्टअप्स क्रिएटेड। यहाँ पे उनकी क्वालिटी के ऊपर मेजर कर रहे हैं कि उन इनोवेशन से क्या इम्पैक्ट आया है। तो रैंक कैटेगराइजेशन 2 है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट और सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन। The public funded institutions are further characterized into Institute of National Importance, Central University, Central Funded Institute, then State University, and finally Government Aided College. Private में I think वही है सब चीज। Major indicators: budget and financing support, infrastructure and facilities, awareness promotion, promotion and support for entrepreneurship development, innovative learning methods and courses, intellectual property generation, then innovation in governance of the institute. तो ये था, और IIT मद्रास को इसमें आई थिंक टॉप चुना था। अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इनोवेशन को रैंक करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। दूसरा है मेटी है। मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ, ये कल हमने कर लिया था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो है ना, तो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। जीवन प्रमाण पढ़ लेगा क्या शासन? पढ़ लेगा या और किसी को देना है? पढ़ लेता हूँ, जल्दी सोना है तो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो recently the Department of Pensioners Welfare roped in the Indian Post Payment Banks (IPPB) utilize its huge network of postmen, Gramin Dak Sevaks in providing doorstep facilities to pensioners and submission of life certificate digitally. तो क्या है, up to facilitate online submission of life certificate by pensioners and streamline the process of getting life certificate. कोई बता सकता है ये लाइफ सर्टिफिकेट क्या है? जो पेंशन होती है ना, तो पेंशन के लिए आपको रेगुलरली ये बताना पड़ता है कि भाई मैं जिंदा हूँ। जिसको भी पेंशन मिल रही होती है तो उसको ये बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, तो उसके लिए ये जीवन प्रमाण पत्र होता है। तो पहले क्या होता था उनको, हाँ बताओ। हाँ, इनको हर साल जाना पड़ता है ना ट्रेजरी ऑफिस में, तो वो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था ओल्ड पीपल के लिए। इसकी वजह से इनकी पेंशन रुक जा रही थी, इसीलिए इसको डिजिटल किया गया है। एंड सिंस ये खुद नहीं कर सकते हैं, तो असिस्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। मतलब बूढ़ा आदमी पता नहीं बार बार कहाँ जाता फिरेगा, तो उसके लिए इन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाया। तो अब ये कॉमन सर्विस सेंटर्स है ना, इससे भी इंक्लूड कर दिया, तो कहीं से भी निकलवा सकते, तो ये ईज कर दिया लोगों को। ठीक है, तो बेनिफिशियरी सरकारी है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फीचर्स की बात करें, इट इज़ एन आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
तो DLCs for pensioners, it can be obtained through Jeevan Praman centers, which are being operated by CSCs, banks, and government offices, or by using client application on PC, mobile, tablet. So it is intended to do away with the requirement of a pensioner having to submit a physical life certificate in November each year in order to ensure continuity of pensions being credited into their account. तो ये डिजिटल इंडिया का एक शायद अच्छा एग्जांपल है. दूसरे में आते हैं. हाँ, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस. तो जो सेकंड फेज है, इट वाज कंप्लीटेड इन अप्रैल 2021. ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर इन सुपर कंप्यूटिंग एंड टू एनहांस India's capability in solving grand challenge problems of national and global relevance. और दूसरी बात क्या है? To empower our scientists and researchers with the state-of-art supercomputing facilities and enable them to carry out cutting-edge research in their respective domains, or to minimize redundancy or duplication of effort and to optimize investment in. थोड़ा नीचे कीजिएगा. To attain global competitiveness and ensure self-reliance in the strategic area of computing technology. इसमें क्या है? थोड़ा ऊपर कीजिएगा. इसमें क्या है अब? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया. और थोड़ा. It was launched in 2015 for 7 years and jointly funded by Department of Science and Technology and METI. So it is implemented by CDAC Pune and Indian Institute of Science Bengaluru. मिशन का एम क्या है? Establishing super computer facilities across 70 national research and academic institutions and connecting them onto a national knowledge network. Focus क्या है? 3 dimensions: creating better supercomputing infrastructure, becoming more application oriented. तीसरा है investing in human capital. So first phase जो है, मतलब पार्ट्स जो थे सुपर कंप्यूटर्स के, ये इंपोर्टेड किए गए और असेंबल किए गए इंडिया में. तो सुपर कंप्यूटर असेंबल इंडिजिनसली प्रोजेक्ट्स हुए परम, शिवाय 2019 है, परम शक्ति, परम ब्रह्मा. तो सेकंड फेज जो है, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर नेटवर्क इन द टू 16 पेंटाफ्लॉप्स. तो फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इज अ कॉमन बेंचमार्क फॉर मेजरमेंट फॉर रेटिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स. मेगा फ्लॉप क्या है? 1 मिलियन फ्लॉप्स. एंड गीगा फ्लॉप क्या है? 1 बिलियन फ्लॉप्स. टेरा फ्लॉप्स क्या है? 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स. एंड पेंटा है 1000 टेरा फ्लॉप्स. थर्ड फेज जो है, इट विल टेक द स्पीड ऑफ द कंट्री सुपर कंप्यूटर टू 45 पेंटाफ्लॉप्स. पहले में सेकंड में हमने 16 पेंटाफ्लॉप देखा था, अब 45 की बात की गई, लगभग 3 टाइम्स. तो क्या है? Once completed, around 75 institutions and thousands of researchers will have access to supercomputing, using NKN. It is with NKN, with its multi-gigabyte capability, is aimed at digitally connecting all the scholars and research institutes across the country. And by facilitating the flow of information and knowledge, the network creates new paradigm of collaboration to enrich the research efforts in the country. So पहला कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, वो है परम 8000. परम सिद्धि ग्लोबल रैंकिंग 63 है, जो कि टॉप 500 में आता है. इज द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर. इसके अंतर्गत क्या है सीन? 3 फेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. पहला जो फेज था बेसिकली तो ये 2015 में लॉन्च हुआ और 7 साल के लिए, और जॉइंट मिशन था फंडेड बाय DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और METI. इम्प्लीमेंट किया गया बाय CDAC पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर. तो 70 रिसर्च जो है इंस्टीट्यूशन, वहीं पे सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश करने की बात की गई है.
और क्रिएटिंग बेटर, तीन क्या है मतलब ऑब्जेक्टिव है। पहला है क्रिएटिंग बेटर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकमिंग मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तीसरा है इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। तो पहले फेज में हमने देखा है कि इंडिजिनस नहीं हुआ, बाहर से पार्ट्स जो है इंपोर्ट हुए और असेंबल हुए इंडिया में। जो इंडिजिनस बनाए गए उसके अंतर्गत तीन है, परम शिवाय 19, परम शक्ति, परम ब्रह्मा। दूसरा जो है इसमें स्पीड को बढ़ाने की बात की गई है जो कि 16 पेंटाफ्लॉप है, और तीसरे में 45 पेंटाफ्लॉप्स है। यही है बस। और तो इसके अंतर्गत हमारे जितने भी सारे रिसर्च स्कॉलर है तो उनको एक डिजिटली एक कनेक्शन दिया जाएगा, मतलब टू कनेक्ट एम्ड एट डिजिटली कनेक्टिंग ऑल रिसर्चर्स अक्रॉस द कंट्री एंड फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च के लिए जो कि बहुत काम आएगा। आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड पार्क स्कीम। ठीक है, किसी और को कुछ आइडिया है कि स्कीम से रिलेटेड और कोई डेवलपमेंट हुआ हो कुछ? शाश्वत? हाँ कोई पढ़ लो, मैं 11 बजे आऊँगा, ठीक है? नींद आ गई? ठीक है, I'll read. Okay. Software Technology Park Scheme. Various units established under the scheme faced financial constraint on account of COVID-19 pandemic. Objective of the scheme: for the development and export of computer software, including export of professional services using communication links or physical media. Salient features: the first software policy came up in 1986. It resulted into Software Technology Park scheme in 1991. It is a 100% export-oriented scheme which integrates concept of 100% export-oriented units and export processing zones and the concept of science park, technology parks. It is unique in its nature as it focuses on one product, one sector, that is computer software. Other important features include provisioning of single point contact services for member units. A company can set up STP unit anywhere in India. 100% foreign equity is permitted. All the imports of hardware and software in the STP units are completely duty-free. Import of second-hand capital goods is also permitted. Re-export of capital goods is also permitted. The sales in the domestic tariff area shall be permissible up to 50% of the export in value terms. So in this, basically there are a lot of extreme words जहाँ पे हम trap हो सकते हैं in prelims question, जैसे कि एक तो factual we have to focus कि पहला software policy came in 1986 and software technology park वाली जो scheme है that came in 1991 और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है। और जैसे हमारे पास SEZ होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उस मतलब उसी के बेसिस पे वी विल हैव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। इसकी एक यूनिकनेस है कि वन प्रोडक्ट एंड वन सेक्टर, ये मुझे नहीं समझ में आया, लाइक ये क्या है। और द बेस्ट थिंग इज कि जैसे इसमें मल्टीपल विंडो पे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स एंड सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फिर से एक अगेन ट्रैप है कि कंपनी कैन सेटअप STP यूनिट एनीवेयर इन इंडिया, तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। और 100% फॉरेन इक्विटी, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है, इसमें परमिशन है कि 100% फॉरेन इक्विटी है। प्लस all the imports will be duty free, कोई भी exemptions वैसा नहीं है। और इवन सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स पे भी ड्यूटी नहीं है। ओके, री एक्सपोर्ट ऑफ, और जो भी कैपिटल गुड्स हमने इंपोर्ट किया है हम उसे दोबारा से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमने कुछ भी मतलब शायद से प्रोड्यूस किया है तो उसका 50% हम विद इन इंडिया सेल कर सकते हैं। The second scheme is
scheme for promotion of manufacturing of electronic component and semiconductors. Recently, the center has been pushing for domestic manufacturing under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Objectives: development of electronic components manufacturing ecosystem, deepening of electronics value chain, maybe ये शायद चाइना को काउंटर करने के लिए. Salient features are अच्छा, वो जो एक offers वो जो financial incentive. हाँ बोलिए. वो ऊपर जो वो पूछ रहे हैं ना, वन प्रोडक्ट पर सेक्टर, मुझे लगता है कि वो उसका यूनिक फीचर इसलिए कि ताकि एक ही सॉफ्टवेयर एक ही सेक्टर के लिए हो, वरना डाइवर्सिटी लाने के लिए होगा बेसिकली, ताकि सब लोग एक ही टाइप के ना बनाने लगे. नहीं, वो उसका सिर्फ ये गोल ही इतना ही है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस करने के लिए ये जो पार्क बनाया है ना, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस करने के लिए या एक प्रोडक्ट पे फोकस करने के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, तो उस पे फोकस करने के लिए, और कोई गोल नहीं है. जैसे SEZ में क्या होता है, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो आप. तो हाँ, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सिर्फ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करना है. जैसे अगर SEZ का एक ड्रॉबैक देखा जाए सबसे बड़ा इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर सारे के सारे ये IT वाले ही जाके बैठे हुए हैं उसके अंदर. मतलब वो बनाया है एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, लेकिन सारे के सारे SEZ के अंदर आप देखोगे तो IT वाले जाके बैठ चुके हैं वहां पे, और वो मुफ्त फायदा उठा रहे हैं वहां पे, मतलब अननेसेसरी फायदा उठा रहे हैं उस चीज का. तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा गोल उनका नैरो करती है. Okay. Salient features: the scheme offers financial incentive of 25% of capital expenditure on plant, machinery, equipment, associated utilities and technology, including for R&D to the industrial units, making investment for manufacturing of capital goods, electronic components, semiconductors. This will cater to all segments of electronic manufacturing such as mobile, consumer electronics, industrial electronics, automotive, medical electronics, telecom equipment, computer, hardware, etc. यहाँ पर diversity है. Benefits: it is likely to attract new investments in electronics sector to the tune of at least rupees 20,000 crore. Direct employment of approximately 150,000 is expected to be created in the manufacturing units, including indirect employment of about 450,000. Reducing dependence on import of components by large-scale domestic manufacturing that will also enhance the digital security. I think all we have to focus here कि 25% जो भी हम खर्चा करेंगे उसका हमें इंसेंटिव मिलेगा, एंड ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी एप्लीकेबल है. और दूसरी चीज़ जो फोकस करने वाली है कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में है, मेडिकल में भी है, टेलीकॉम में भी मिल रहा है, कंप्यूटर में भी है, हार्डवेयर में भी है, एंड पर्पस तो वही है न्यू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए. एंड इसमें एम्प्लॉयमेंट हमें डायरेक्टली भी फ़ायदा होगा और इनडायरेक्टली भी फ़ायदा होगा, और डिपेंडेंसी हमारी दूसरी कंट्रीज़ पे स्पेशली चाइना उसको कम करने के लिए. ठीक है. Next scheme is production linked incentive scheme for large scale electronics manufacturing. The center is facilitating domestic manufacturing under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan through PLIs, production linked incentive. Objective is boost domestic manufacturing, attract large investments in the electronics value chain, including manufacturing of mobile phones, semiconductor packaging, and electronic components, including assembly, testing, marketing, and packaging units. Salient features are: under the scheme, electronic manufacturing companies will get an incentive of 4 to 6% on incremental sales over base year of goods manufactured in India and covered under target segments to eligible companies over a period of next 5 years. The scheme shall only be applicable for target segments, namely mobile phones and specified electronic components. The government estimates that under PLI scheme, domestic value addition for mobile phones is expected to rise to 35 to 40% by 2025 from the current level of 20 to 25%
and generate additional 8 lakh jobs, both direct and indirect. The scheme will also help in creating 2 to 4 champion Indian companies. Here also the main thing is to focus is कि 4 to 6% मिलेगा on incremental sales, not total sales. And दूसरी चीज़ है कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होने चाहिए और ये नेक्स्ट 5 years तक के लिए ही है. एंड इसके कुछ जो स्पेसिफाइड सेगमेंट्स हैं, मोबाइल वाला और ये जो इधर इस लिस्ट दी हुई है, सिर्फ उन्हीं पे ही एप्लीकेबल है. एंड जो इसका विजन है कि इसका ये एक्सपेक्टेशन है कि 35 to 40% करना है 2025 तक, और अभी जो हमारा लेवल है वो 20 to 25% ही है. और कुछ चैंपियन इंडियन कंपनीज को वो करना है, क्रिएट करना है. अभी इंडिया सेकंड है ओवरऑल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना से थोड़ा पीछे है. तो उस चीज को क्योंकि अभी देखा जाए तो Xiaomi वगैरह जो है दे आर ओनली इंपोर्टिंग और फिर असेंबलिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर. तो उसको और होलिस्टिक बनाना है कि ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर इंडिया से फिर प्रोडक्ट जो है वो बाहर की तरफ जाए. तो हमारे यहाँ चिप्स और ये सब इजीली नहीं मिलती ना, हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है. और रिसेंटली भी अभी आया था कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का. करेक्ट. मतलब सेकंड हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर है ना, तो उस चीज को और लेवरेज को ना और ज्यादा इंक्रीज करना है इसमें. लेकिन उसमें इशू ये है कि हमारे यहाँ मेनली असेंबली होती है, हम लोग रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए वो उस चीज को टैकल करने के लिए है. इवन जो मैन्युफैक्चरिंग भी है ना, वो फॉरेन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग वाले यहाँ पे ज्यादा करते हैं. अभी रिसेंट में शायद सैमसंग का प्लांट शायद रिसेंट में बात हुई ना, यहाँ पर R&D ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यहाँ पे इंडिया में आने के बाद. तो प्रॉब्लम वही है कि जो कंपनीज है वो ही फॉरेन है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. इंडिजिनियस कंपनीज कम है. बट ग्लोबल कॉस्ट का जो शिफ्टिंग हो रहा है ना फ्रॉम चाइना, तो आई थिंक सैमसंग इज वन एग्जांपल जो वहां से यहाँ पर आया है. राइट. अपनी डोमेस्टिक नीड भी बढ़ने वाली है ना, मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया है किसी रिपोर्ट में, तो उसको भी इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन करके है ना, उसने प्रोजेक्ट किया ना कि हम लोग के इंटरनेट पेनिट्रेशन और बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम पे, और नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स भी और हो जाएंगे. ज्ञान सर यार किसी को इंक्रीमेंटल सेल्स अच्छे से समझ आया क्या? हाँ, जो भी एडिशनल सेल होगा आपका, आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे उस पे हम बेनिफिट देंगे. जैसे आप अभी 10 लाख कर रहे हैं बेस ईयर से, अगर आपने 2 लाख और सेल बढ़ा दी तो हम 2 लाख का 4 से 6% देंगे, पूरे 12 लाख का नहीं देंगे. पहले कैसे होता उसके मतलब देंगे क्या, मतलब टैक्स रिबेट देने का बोला है ना, एग्जैक्टली देंगे क्या? मतलब उनको वो रिबेट देंगे एक तरीके से कि जितना करा है ना आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर्स के अंदर मेरे ख्याल से सब्सिडी देंगे शायद से कुछ आगे के लिए. अभी इससे पहले की स्कीम्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो PLI स्कीम में, तो उसमें भी तो यही था कि इंक्रीमेंटल सेल्स पर इंसेंटिवाइज करेंगे वो. करेक्ट. सेम यही तो था. फाइनेंशियल इंसेंटिव था वहाँ तो साफ साफ. मतलब इंसेंटिव किसी फॉर्म में हो सकता है ना, टैक्स में हो सकता है, रिबेट में हो सकता है, कुछ ड्यूटीज कट में हो सकता है. हाँ बट ये टैक्स वाला इंसेंटिव नहीं है. टैक्स तो नहीं है. प्रोडक्शन बढ़ाना है हर सेक्टर में, वही जो 10 सेक्टर्स में पूरा प्रोडक्शन बढ़ाना है. एक्चुअली यही पॉइंट हम आपने डिस्कस कर रहे थे ना कि इंसेंटिव जो हम दे रहे हैं प्रोडक्शन पे दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पर नहीं दे रहे हैं, जो चाइना ने दिया था लाइक रिसर्च बेस्ड इंसेंटिव या प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव. तो एक क्रिटिसिज्म है PLI का. Okay. Shall I proceed? Yeah. Gyan Circle Ventures. It is a METI-funded technology business incubator of Indian Institute of Information Technology, Sri City, Chittor, Andhra Pradesh. It would function as a technology incubation and development of entrepreneurs tied to incubation center to promote deep tech entrepreneurship through financial and technical support
to incubators engaged in using emerging technologies such as Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain, Robotics. मेरे ख्याल से वही है जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से वो करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस देना. हेलो. Next, DigiLocker. It is a platform for issuance and verification of documents and certificates in a digital way, thus promoting paperless governance. Indian citizens who sign up for a DigiLocker account get a dedicated cloud storage space that is linked to their Aadhaar number. Organizations that are registered with DigiLocker can push electronic copies of documents and certificates, that is, driving license, voter ID, school certificates, directly into citizens' locker. Citizens can also upload scanned copies of their legacy documents in their accounts, which can be electronically signed using the e-sign facility. IRDAI, Insurance Regulatory Authority of India, in Feb 2021 advised all insurance companies for issuance of digital insurance policies via DigiLocker. DigiLocker team in NEGD, National E-Governance Division under METI, will provide necessary technical guidance and logistics support to facilitate adoption of DigiLocker. ठीक है, इसमें we have to focus कि they will be linked, these documents will be linked to the Aadhaar number. Second thing is they will provide e-sign facility, that is digital signature का facility. और फिर इसमें सारे all insurance companies, IRDAI ने compulsory किया था क्या कि all insurance companies will have to issue these digital policies. So this we have to remember. बाकी इतना ही मुझे important लगा इसमें. I think वो compulsory नहीं, advised है. right? Advised, हाँ right. Okay. Advised. Right. और फिर इसको कर रहा है, ये मेटी के अंडर में है एंड टेक्निकल गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये मेटी का है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन. नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है ना, आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में है ना, ये एनईजी नहीं मीटी में है ना, मीटी में मीटी हाँ मीटी में. ओके सॉरी. हाँ अच्छा, तो ये टेक्निकल गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन. ठीक है. नेक्स्ट, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग. Umang is developed by, again, National E-Governance Division under METI to drive mobile governance in India. It intends to provide major services offered by central and state government departments, local bodies, and other utility services from private organizations. It provides a unified approach where citizens can install one app to avail multiple government services. Its service has been made available on multiple channels like mobile application, web, IVR, and SMS, which can be accessed through smartphones, feature phones, tablets, and desktop. In November 2020, Umang's international version launched during online conference organized to mark 3 years of Umang. The international version was launched for select countries that include USA, UK, Canada, Australia, UAE, Netherlands, Singapore, Australia, and New Zealand. It will help Indian international students, NRIs, and Indian tourists abroad to avail Government of India services anytime. It will also help in taking India to the world through Indian culture services available on Umang and create interest among foreign tourists to visit India. करेक्ट. Okay. आई थिंक रिसेंटली कोई सऊदी अरेबिया में कोई वो था, कोई अवार्ड था, वहां पे इसको मिला भी था उमंग ऐप को. तो मतलब काफी ज्यादा मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है इसका इम्पोर्टेंस. आई थिंक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे. ठीक है. ऑल सर्विसेज, वो मोबाइल के एक टैब पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी एंड कनेक्टिविटी.
अच्छा, इसको ये- 3 years हो गए, 3 Yeah. years हो गए हैं. 3 ओके. years. और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है प्लीज के इससे? बेस्ट पार्ट मेरे इज के हिसाब से ये में ये सेंटर स्टेट मोबाइल और गवर्नेंस में यूज है। हम्म. सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज जो है तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, तो मतलब उसको अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं जाना पड़ेगा, सब एक ही ऐप पे जा रहा है. ओके. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी वो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर। हाँ, कि इसमें प्राइवेट भी है, हम्म. मतलब Government कुछ के साथ। सर्विसेज एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज फ्रॉम कुछ मतलब सर्विसेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Nagar One scheme, it aims to develop 200 urban forests across the country in next 5 years. It will involve focus on people participation and collaboration between forest department, municipal bodies, NGOs, corporates, and local citizens. It will focus to plant trees on land that has been marked as forest land but do not have any trees. Forest once established will be maintained by state government. Okay. 200 क्वांटिटी याद रखनी है और नेक्स्ट 5 years और सब हैं इसमें, NGOs, everybody is included and ये ऑलरेडी हम मार्क किए रहेंगे फॉरेस्ट लैंड और इसकी मेंटेनेंस विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये शायद से एक मेवियाकी कौन सा है इसकी जो किसी फॉरेन कंट्री में है, आई डू नॉट रिमेम्बर द वर्ड. जापान जापान में. मियावाकी. हाँ. ओके. अर्बन फॉरेस्ट. ओके. व्हाट इज द नेम? मियावाकी. अच्छा, मियावाकी. लेकिन वो अपने प्राइवेट में लगाना होता है ना, इसमें क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट का लैंड है उस पे लगाने का है. वो मियावाकी शायद वो अपने प्राइवेट उस अच्छा, पे वो भी तो फॉरेस्ट. हाँ, मतलब वो सिटी के अंदर विद इन द सिटी कोई छोटा पैच भी है ना, वहां पे भी वो आप उगा दो उसको, बट ये ओनली ऑन लैंड मार्क्ड एज फॉरेस्ट, तो व्हिच इज यूजुअली आउटसाइड द सिटीज, आउटस्कर्ट्स के सिटी के आउटस्कर्ट्स में मिलेगी ऐसा लैंड, तो वहां पे उनका फोकस है. ओके. Other schemes in news. I mean, so basically, this will hit to that final target, na, to increase that carbon sink by 2.5 to 3 gigaton, that INDC target. Correct. Yes. National Action Plan on Climate Change, NAPCC. Various climate-related issues and government efforts to tackle them kept the scheme at the center stage of climate-related discussions. Objective: to achieve a sustainable development path that simultaneously advances economic and environmental objectives. To fulfill India's intended nationally determined contributions (INDCs) to the UNFCCC under Paris Agreement. Correct. To protect the vulnerable and poor sections of society through inclusive and sustainable development strategy sensitive to climate change. To devise efficient and cost-effective strategies. Mission is National Solar Mission under Ministry of Renewable Energy. Correct. National Mission for Enhanced Energy Efficiency under Ministry of Power. National Mission on Sustainable Habitat under Ministry of Housing and Urban Affairs. National Water Mission under Ministry of Jal Shakti. National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem under Ministry of Science and Technology. Science and Technology के अंदर में Himalayan. Okay. National Mission for a Green India under Ministry of Environment. National Mission for Sustainable Agriculture under Ministry of Agriculture. National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change under Ministry of Science and Tech. मुझे दो थोड़ा अजीब लगा कि हिमालयन वाला इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड क्लाइमेट चेंज वाला इज आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक. Features: the action plan was released in 2008. The Prime Minister's Council on Climate Change is in charge of the overall implementation of the plan. The plan document elaborates on a unique approach to reduce the stress of climate change
and uses the poverty growth linkage to make its point. The guiding principle of the plan are protection of the poor and vulnerable sections of society through inclusive development strategy, achieving national growth through a qualitative change and economic direction that enhances ecological sustainability, devising efficient and cost-effective strategies for end-use demand-side management, better technology that looks into aspects of mitigation and adaptation, market mechanism that rewards sustainable development, inclusivity that invites link-ups with civil society and local government institutions. Many of the sectors most at risk from climate change, such as water and agriculture, are the responsibility of the state government. So, all states have to develop a SAPCC, which implements the national policy framework taking into account their own unique vulnerabilities. Government of India is also implementing a dedicated National Adaptation Fund for climate change to implement adaptation actions in vulnerable sectors across the country. तो कोई समझाएगा इसको? किसको? ये वाला इसमें समझना है कुछ? आई थिंक फैक्ट्स ही हैं इसके अंदर, तो स्ट्रेट अप फैक्ट्स हैं। मिनिस्ट्री किसके, हाँ, कौन सा मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर में है? हाँ, ये स्कीम में अभी भी चल रही है, मतलब कि 2008 से शुरू था, 2015 में एंड था ना शायद इसका? नहीं, अभी भी चल रहा है। ये चल रहा है अभी, क्योंकि एनडीसी को फुलफिल करने में ये पूरा एक्शन प्लान है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम है ये, और उसके अंदर मल्टीपल, ये 8 जो स्कीम देखी हमने ये सारी है, तो इनका अलग अलग मिनिस्ट्री भी है, अलग अलग रोल भी है, तो थोड़ा बहुत होलिस्टिक है अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम है। मतलब जितने बड़े प्लान है ना सस्टेनेबल, वो इसी के अंडर में आते, जितने मिशंस हैं, जैसे सोलर वाला जितने मिशंस हैं वो उसी में आएंगे। नेशनल मिशन ऑन सोलर, जो सोलर मिशन है, उसी का एलईडी प्रोग्राम जो था वो एनर्जी एफिशिएंसी में आएगा, जो स्टार रेटिंग वाला प्रोग्राम था। एक शायद कोई पी सर्टिफिकेट या कौन से थे, वो भी शायद इसी में आएंगे ना, जो रिन्यूएबल सर्टिफिकेट थे शायद बीच में थे ना बॉन्ड्स, वो भी इसी में आएंगे। एक लास्ट में इसमें ये दिया ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एडेप्टेशन फंड की बात कर रही है, उसी के लिए अभी शायद फाइनेंस कमीशन ने बोला था ना, 15 फाइनेंस कमीशन ने, कि नेशनल मिटिगेशन फंड भी बनाना चाहिए एडेप्टेशन फंड के अलावा भी, तो रिकमेंडेशन दी थी। और इसका जो प्लान है इसका कोई टाइम टारगेटेड नहीं है, मतलब कि जैसे कि बोल रहे थे ना 2015 में खत्म होना है, तो ऐसा कुछ वो टारगेट नहीं है कि तब तक खत्म करना है। मेनली ये लोग पॉलिसी जो आईएनडीसी को लेके बनाएंगे ना, जैसे 175 गीगावाट वाला टारगेट था 2022 तक कंप्लीट करना था ना सर, 2022, तो टारगेट 2030 तक, तो बेसिकली वही है कि एक सिंक्रोनाइज करना है इनको आईएनडीसी के टारगेट से, तो उसी के हिसाब से पॉलिसी बनेगी सारी हर एक डिवीजन की। ओके, एंड वाटर एंड एग्रीकल्चर पे स्पेशल फोकस स्टेट गवर्नमेंट्स का होगा, उन्हें इस पर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाना है। अब जैसे नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत मुझे लगता है वो जल जीवन मिशन इसी में आएगा, वो जो एक मोटा जो मिशन है उसमें सारे सब स्कीम्स आती जाएंगी। करेक्ट। हाँ, इंडिया के अंडर में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मिशन और उनका मिनिस्ट्री, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए एक बार। So National Solar Mission under MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy. Then National Mission for Enhanced Energy and Efficiency, तो ये obviously Ministry of Power के अंडर आएगा। Then National Mission on Sustainable Habitat, ठीक है, तो घर में रहने का जो क्राइटेरिया है वो सस्टेनेबल हो, तो वो that is under Ministry of Housing and Urban Affairs। इसी से रिलेटेड एक पॉलिसी इन्होंने लॉन्च करी है ग्रेहा नाम से, तो उसमें जो हाउसेज होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनको रेटिंग दी जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज नेशनल वाटर मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो इसके अंदर डिफरेंट मिशंस है और बेसिक फोकस है ऑन वाटर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये इनमें से ऑड वन आउट है,
ठीक है, ब्लैक शीप है इस पूरे स्कीम में, मतलब पूरे इस अम्ब्रेला में, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है, तो थोड़ा सा यूनिक है, इसको ध्यान में रख लेना। द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो ये भी अंडरस्टूड ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ही आएगा। देन नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट इसके अंडर डील करेंगे हम लोग। एंड देन फाइनली नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी एक और यूनिक है थोड़ा इसमें, इसकी मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक, ठीक है। तो ये थी 8 स्कीम्स और 8 उनकी मिनिस्ट्रीज हमने देखी, ठीक है। लॉन्च हुआ था 2008 में, और बाकी तो आई थिंक सब जेनरिक चीजें ही हैं, तो इतना कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस वो स्टेट फंड जो है वो नबार्ड नो कीप्स इट, राइट? वो फंड गवर्नमेंट ऑफ, अच्छा वो वाला फंड, एक फंड है ना इसमें। हाँ नबार्ड करते हैं ना, गाड़ी करते हैं। वो 2% है ना उसमें कुछ, क्लीन कोल सेस वो है ना, इसी में था 2%। हाँ हाँ इस वाला था वो 2% वाला, किसका था? एडवर्टाइजेशन फंड। ठीक है। अपन अभी देख के यही बता देंगे। स्टॉप करते हैं आज। बट आई थिंक इसको जो है ना नेक्स्ट में दे हैव गिवन वन मिशन, ईच मिशन दे हैव एलैबोरेटेड, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा, राइट? थोड़ा नीचे आओ संजय, दे हैव एलैबोरेटेड ऑल द मिशंस आई थिंक एक ही दिया है इसमें, एक ही दिया है। ओह ओके, बट आई थिंक पता नहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑल मिशन थोड़ा देखना पड़ेगा शायद। ओके आई थिंक लास्ट के पीटी में होगा शायद ये कंप्लीट कर लो ना, एक जो पेंडिंग है मैं पढ़ देता हूँ, ओपन करो उसको। हाँ ये देखो, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सो इट इज वन ऑफ द मिशंस अंडर NAPCC implemented by MOFCC. The mission uses both public and private lands. तो कोई बोल रहा था ना, in this there is both public and private land and includes local communities in planning, decision making and monitoring. So Green India mission aims to increase forest cover / tree cover to the extent of 5 million hectares. तो 5 million hectares increase and improve the quality of forest / tree cover on another 5 million hectare. तो overall 10 million hectare हो गया, right? तो ये है। अभी इंडिया ने लैंड डेजर्टिफिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी एक टारगेट सेट किया है ना। हाँ 26 तुम बोल रहे थे ना। करेक्ट। Okay. Improve / enhance ecosystem services like carbon sequestration and storage in forests and other ecosystem. Okay. Hydrological services and biodiversity, along with provisioning services like fuel, fodder, timber and non-timber forest produce. So ये general services, and then to increase forest-based livelihood income of about 3 million households. So ये Green India mission, okay, National Mission for Green India. पता नहीं इसने इन्होंने क्यों एक ही को दिया है, बट आई थिंक ऑल मिशन एक बार मे बी आई थिंक शायद लास्ट वाले में था, इन्होंने सारा को पूरा एक्सप्लेन करा तो था आई थिंक किसी में। देख लेंगे नेक्स्ट में अगर टाइम मिलता है तो। आई थिंक आज यही स्टॉप करते हैं, स्टोरी भी पढ़नी है। ओके फाइन, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो यस्टरडे तो yesterday we saw 4 chapters. First one was screen दिख रहा है ना? नहीं